This is Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome in the lecture series of Remote Sensing and Geographical Information System. Subject offered by Gujarat Technological University in 5th semester of BE. Having a subject code is 3150617. In this video series, students should know about remote sensing and GIS, Geographical Information System. In last lecture, we have discussed about the key components and its function of GIS, some spatial data, then geospatial analysis, then some example related to spatial data and its problem, and also discuss about non-spatial information system, spatial information system, its function and its objectives, their advantages. In advantages, we have discussed tangible data and intangible data. Also, we are discuss about data preparation for maps, their characteristic of spatial data. So, in this lecture, we have discussed about raster data, vector data, and some types of data for GIS. So let's start. Spatial data, one example for spatial data. In spatial data, there are two types of data: socio-economic data. In socio-economic data, regional health data, consumer data, lifestyle profile, geodemographic data. In environmental data, topographic data, thematic data, and soil data and geologic data. Let's see one data modeling example. In step 1, there are many features for the data modeling: buildings, road center lines, lamp columns, gas pipes, CTV access cover, road surfaces. In step 2, there are vector data that show the modeling by using point, line, polygon, and this one is the feature. In this picture, we have seen one building, and we have set that building by using polygon in GIS, and entity is the building is Tourist Information Bureau. So there are two types of data we have used for particular image, GIS image. One is vector data. By using vector data, we have made one vector model, and second one is raster data. And use of raster, we can use raster data for the making of raster model. In vector model, as a geometric object, we have used points, line, and polygons. So vector data is the best described as geographical representations of the real world. There are three main types of vector data we have discussed last: points, line, and polygons. So all the points in map, connecting by connecting those points, you create one lines, and connecting that lines that create an enclosed area and create one polygon. So there are number of dots, and that dots connect and make one line, and that line makes one polygon. So the vector are best used to present
जनरलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस। सो ये वेक्टर डेटा है, उसका यूज़ करके हम अर्थ सरफेस का जो कोई फीचर्स है और कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम वहाँ पे दिखा सकते हैं। एंड वेक्टर डेटा एंड द फाइल फॉर्मेट नोन एज शेप फाइल। और जो भी वेक्टर डेटा हम कलेक्ट करेंगे, जो भी वेक्टर डेटा को हम फाइल में रखेंगे, वो फाइल है, वो एक शेप फाइल बनती है और उसका शॉर्ट है .shp फाइल। आर समटाइम्स यूज interchangeably since vector data is most often stored in .ssp फाइल। उसको हम इंटरचेंजेबल भी कर सकते हैं वेक्टर डेटा को .shp फाइल में। अब ये रास्टर जो डेटा है, रास्टर डेटा इज़ द डेटा दैट इज़ प्रेजेंटेड इन ए ग्रिड ऑफ पिक्सल। यानी कि आपको यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है, एक रास्टर मॉडल दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आपको नंबर ऑफ ग्रिड दिखाई दे रही है। सो ये ग्रिड है वो रिप्रेजेंट कर दिया रास्टर डेटा। रास्टर डेटा को पिक्सल में यानी कि ग्रिड में वो मैप है GIS मैप, उसमें दिखाई दिया जाता है। ईच पिक्सल विद इन ए रास्टर है जो वैल्यू, ये जो सब पिक्सल है आपको दिखाई दे रहे हैं उसकी सब वैल्यू है। पर्टिकुलर हम एक एग्जांपल देते हैं कि सपोज़ के कोई पर्टिकुलर एक फार्मर है, वो फार्मर की कोई लैंड है, तो पर्टिकुलर उसकी लैंड का जो एरिया है वो जो 1 पिक्सल है उसमें उसका लैंड का एरिया है वो उसमें दिया जाता है। So each pixel give us a particular data of that place, whether it is to be color or unit of measurement to communicate information about the elements in question। वो जो वहाँ पे कोई भी कलर रहता है, वो कलर भी वहाँ पे उस आपको पिक्सल में दिखाई देगा, और वहाँ पे कोई उसका जो मेज़रमेंट है, उसका मेज़रमेंट कितना है वो भी आपको दिखाई देगा। प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए आपको सभी जो भी आपको कलर चाहिए तो कलर भी दिखाई देगा वहाँ पे, और उसका एरिया कितना है वो भी आपको दिखाई देगा। रास्टर टिपिकली रिफर टू इमेजिनरी, आपको इमेजिनरी पोजीशन में आपको दिखाई देगा मैप पे। हाउएवर इन द स्पाटियल वर्ल्ड दिस में स्पेशली रिफर टू ऑर्थो इमेजिनरी विच आर फोटोज टेकन फ्रॉम सैटेलाइट और अदर एरियल डिवाइसेस। और ये जो रास्टर डेटा आपको जब आप मैप ओपन करते हो और आपको जो पर्टिकुलर कोई भी लैंड वहाँ पे दिखाई दे रही है, तो वो पर्टिकुलर क्या है, वो सैटेलाइट से एक इमेज ली गई है। वैसे में सैटेलाइट और कोई अदर डिवाइसेस, एरियल डिवाइसेस और कोई अदर डिवाइसेस से उस पर्टिकुलर प्लेस की वहाँ से फ़ोटो निकाली गई है और उसको उस पिक्सल में कैलकुलेट करके उसका एरिया कैलकुलेट करके वहाँ पे रखा जाता है। रास्टर डेटा क्वालिटी वेरियस डिपेंडिंग ऑन रिजोल्यूशन एंड योर टास्क एट हैंड। सो these are the raster model and vector model. Then attributes data. So the attribute data is defined as all other data for that place, like particular that place has one of name, then address of that place like 5 marketplace, then town of that place like kingdom, then owner of this place, then telephone number of that owner, and floor space of that place or of that area. And also the spatial data contains more information than just a location on the surface of the earth. तो कोई स्पाटियल डेटा है तो उसको पर्टिकुलर कोई एरिया है और कोई लोकेशन है अर्थ के सरफेस ऊपर, उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ की चाहिए होती है। तो वो जो इंफॉर्मेशन है पूरी की पूरी उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट डेटा। और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन और कोई नॉन स्पाटियल डेटा और डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ रिफर्स एंड एट्रीब्यूट, हम ये सब जो है स्पाटियल डेटा की कोई इन्फॉर्मेशन है और कोई एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन है और कोई नॉन स्पाटियल डेटा है और वो जो प्लेस है उसकी ये सब इन्फॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट डेटा।
Spatial data can have any amount of additional types accompanying information about that location. So spatial data है वो क्या है, वहाँ की कोई भी एडिशनल कोई फीचर्स है, एडिशनल कोई भी डेटा है, उसकी लोकेशन प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जांपल यू माइट हैव मैप डिस्प्लेइंग बिल्डिंग विद इन ए सिटीज़ डाउनटाउन रीजन. आपको सपोज कि कोई एक मैप में आपको कोई बिल्डिंग दिखाई दे रही है और वो बिल्डिंग कोई सिटी के रीजन में है. ईच ऑफ द बिल्डिंग इन एडिशन टू देयर लोकेशन. सो वो जो बिल्डिंग है उसका वहाँ पे लोकेशन दिखाई देगा. मे हैव एडिशनल एट्रीब्यूट सच ए टाइप्स ऑफ यूज, हाउसिंग, बिजनेस, गवर्नमेंट एक्सेट्रा. वो बिल्डिंग है कौन यूज़ कर रहा है, कोई हाउसिंग बिल्डिंग है और कोई बिजनेस बिल्डिंग है या तो कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है, वो भी आपको दिखाई देगा. एंड द ईयर इट वाज बिल्ट एंड हाउ मेनी स्टोरीज इट हैज़, और वो किस साल में उसका वो बिल्डिंग बनी है वो भी आपको दिखाई देगा. और कितनी स्टोरी की वो बिल्डिंग है वो भी आपको ये जीआईएस मैप में दिखाई देगा. तो ये सभी सारी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट डेटा. देन sources of data. So the sources of data is a wide variety of data. Sources exist for both spatial and attribute data. So the most common general sources of spatial data are hard copy maps, aerial photographs, remotely sensed imaginary point data sample from survey, existing digital data files. So ये सभी है ये सभी जो डेटा है उसको भी चाहिए होता है जब एक प्रॉपर मैप बनाने के लिए, प्रॉपर जीआईएस में रखने के लिए. वो जो मैप की हार्ड कॉपी है वो भी चाहिए रहती है, और कोई एरियल फोटोग्राफ्स आपके पास अवेलेबल है तो वो भी चाहिए होते हैं. कोई रिमोट सेंस से कोई इमेजनरी ली है तो वो भी. कोई पॉइंट डेटा है बाय यूजिंग सर्वे, आपने कोई पॉइंट डेटा कलेक्ट किया है, और कोई एग्जिस्टिंग जो डिजिटल डेटा फाइल है, तो ये सभी का यूज़ करके हम एक जीआईएस इमेज बना सकते हैं. सो अनदर वन एग्जांपल हियर फॉर डेटा इज जीआईएस डेटा इज अनदर वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन. आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो आपको जीआईएस मैप पे मिल सकती है. सो द इंफॉर्मेशन वी आर यूज इन जीआईएस नॉर्मली हैज़ ए जियोग्राफिकल एस्पेक्ट टू इट. थिंक ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल अबाउट द हेल्थ केयर वर्कर के लिए कोई भी डेटा चाहिए होता है तो उसका वो भी उस पर मिल सकता है. सो टेबल शो रिकॉर्ड डिसीज दैट लुक लाइक दिस. सो पर्टिकुलर कोई एक प्लेस पे कोई एक प्लेस है वहाँ का आपको यहाँ पे जो डिसीज़ का डेटा दिया गया है उसमें लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड दिया गया है. लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड को ऐड करके आप जनरली क्या कर सकते हो तो कि वहाँ कौन सा प्लेस है वो फाइंड कर सकते हो. देन पर्टिकुलर वहाँ पे कौन सी डिसीज़ हुई थी और डेट भी आपको वहाँ पे दिखाई देगी. तो ये सब जो डेटा है वो एट्रैप डेटा है. सो द लॉन्जिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड एंड लेटीट्यूड कॉलम्स होल्ड जियोग्राफिकल डेटा है, और डिसीज एंड डेट कॉलम्स होल्ड्स नॉन जियोग्राफिक डेटा है. तो आपको लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड दिखाई दे रहा है वो है जियोग्राफिकल डेटा. वो कोई भी प्लेस का आप जियोग्राफिकल डेटा निकाल सकते हो लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड आपके पास है तो. एंड ऑल अदर डेटा जिसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट डेटा. सो दैट यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिसीज एंड डेट कॉलम. सो दैट वन इज नॉन जियोग्राफिकल डेटा. So here we have seen one picture. In that picture, first one is vector data. In the vector data model, features on the earth are represented as point, line and polygon. So हमने डिस्कस किया कि वेक्टर डेटा है उसको हम पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन में रिप्रेजेंट करते हैं. सो आपको यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है मिनी पॉइंट दिखाई दे रहा है. तो वो है वेक्टर डेटा. जो रास्टर डेटा है पहले वेक्टर डेटा को देख लेते. वेक्टर डेटा में वो पॉइंट दिखाई दे रहा है और नंबर ऑफ पॉइंट को छोड़ के एक लाइन बनती है और नंबर ऑफ लाइन बन के छोड़ के आपको एक पॉलीगॉन बनता है. सो दैट रिप्रेजेंट दैट वेक्टर डेटा. इन रास्टर डेटा in the raster data model, geographic features like land cover is represented as single square cell. तो हमने देखा था कि भाई रास्टर डेटा है वहाँ रास्टर डेटा को हम पिक्सल में और ग्रिड में हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे कोई भी जियोग्राफिक फीचर्स है लाइक लैंड कवर है,
कोई एक लैंड कवर है तो लैंड कवर को हम एज ए फिक्सल हम उसको दिखा सकते हैं। आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, कई सारे फिक्सल दिखाई दे रहे हैं, तो वो है रास्टर डेटा। Then attributes like more information about that place. So attribute values in GIS are stored as a relational database table. So कोई भी पर्टिकुलर कोई एक एरिया है, जियोग्राफिक एरिया, वहाँ की जो उसके रिलेटेड कोई भी डेटाबेस है उसको टेबल में आप टेबल में स्टोर कर सकते हो। ईच फीचर्स पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन और रास्टर डेटा है, वेक्टर और रास्टर डेटा है, उसको जोड़ के कोई भी जीआईएस लेयर हो तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। और वो जो रिप्रेजेंट है, एक्स्ट्रा रिप्रेजेंटेशन, वो आप एक टेबल में रिकॉर्ड कर सकते हो। So this one also we can see one raster data example and vector data. So in raster data there are many of pixels, grids are shown. In vector data there are number of dot, there are one line and line made from number of dots, and that line also made number of polygon in this picture, and the above picture is real world। और उसको आप जब देखो तो वो ऐसा दिखाई दे रहा है, जैसे कि पर्टिकुलर कोई जगह पे फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट का पर्टिकुलर कोई मैप लेना है आपको, तो वो अच्छी तरह से लेना है आपको, तो उसके लिए आपको रास्टर डेटा यूज़ करना पड़ता है। सो इन रास्टर डेटा some code for that area, and also land cover and name and cell। सेल की जो पर्टिकुलर कोई एरिया का डायमेंशन कितना है वो दिखाता है। सपोज़ के फर्स्ट वन है इज़ फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को आप सेकंड वाला टेबल देख रहे हो, उसमें फर्स्ट वन है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट की किस ट्री का फॉरेस्ट है, तो कि भाई शेरवुड फॉरेस्ट है, तो सेल कितने हैं 100 सेल। तो पर्टिकुलर जो 100 सेल है उसमें वो शेरवुड का ट्रीज हो गए। सेकंड वन है ग्रासलैंड है, सपोज़ वहाँ पे नाम दिया गया मार्शल फील्ड, या पर्टिकुलर कोई भी नाम हो। सपोज़ कि हमारी कॉलेज है डॉक्टर सुभाष टेक्निकल कैंपस, तो उसमें जो कोई भी आपको फील्ड दिखाई दे रहा है तो उसको नंबर ऑफ़ सेल में वो डिवाइड किया जाता है। और यहाँ पे जो मार्शल फील्ड है उसको 150 सेल में डिवाइड किया गया है। फिर लेक है तो लेक ब्लू लेक है तो उसको 75 में। तो ये है रास्टर डेटा। और पर्टिकुलर वेक्टर में, वेक्टर डेटा में वो एरिया का मैप, एरिया कितना है वो भी वो दिखाते हैं। फिर उसका पेरीमीटर कितना है, और वहाँ पे कोडिंग दिया गया है और उसका पर्टिकुलर नेम दिया गया है, और उसकी वहाँ पे लेंथ, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन होगी तो लाइन की लेंथ भी वहाँ पे दिखाई देगी। देन मॉडलिंग ऑफ द रियल वर्ल्ड। आपको यहाँ पे दो तरह के डेटा दिखाई दे रहा है, और पर्टिकुलर डेटा के कोई भी मेज़रमेंट है वो भी दिए गई है। तो हम ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये जो तीसरी फिगर है ऊपर वाली है वो है वेक्टर डेटा, यानी कि डॉट लाइंस और पॉलीगॉन्स दिखाई दे रहे हो, और नीचे वाली है वो रास्टर डेटा, उसमें फिक्सल दिखाई दे रहा है। वो दोनों मिलके एक मैप बनाते हैं। दूसरी जो इमेज है उसमें आपको दिखाई दे रहा है, उसमें पिक्सल ने भी एक लाइन दिखाई दे रही है, और रास्टर और वेक्टर डेटा दोनों का रिप्रेजेंटेशन है वो पर्टिकुलर दैट प्लेस। देन vector data. So vector data is stored as a series of x-y coordinate pair include the computer's memory, and the vector data is used to represent point, line and areas. And also we have one figure shows the different types of vector data being viewed in GIS application. So let's see that picture। यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रही है, एक हिल है और हिल के आसपास कई सारे ट्रीज है, और बीच में से रोड निकल रहे हैं, और यहाँ पे कोई हाउसेस भी दिखाई दे रहे हैं पिक्चर में। सो देखते हैं उसको। सो द वेक्टर डेटा प्रोवाइड ए वे टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड फीचर्स विद इन GIS एनवायरनमेंट, एंड फीचर्स इज एनीथिंग यू सी ऑन द लैंडस्केप।
Imagine you are standing on the top hill. In this figure, imagine you are standing on the top of the hill. So वहाँ से आपको क्या दिखाई देगा? Looking down, you can see houses, road, trees, river, and so on in figure. So each one of these things would be a features when we represent them in GIS application. So vector features have attributes which consist of text or numerical information that describe the feature. तो वेक्टर डेटा में क्या होता है? एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन एट्राइब डेटा की ज़रूरत रहती है, उसमें कोई टेक्स्ट हो, पर्टिकुलर डेट प्लेस का कोई नेम हो, या कोई उसका न्यूमेरिकल्स हो, लाइक उसका वो जो एरिया है उसकी कोई उसका डायमेंशन कितना है, वो भी आपको वहाँ पे दिखाई देगा. So now we are concluding our session. If you have any query and want additional information, so feel free and keep message in comment box. Thank you very much.